Good morning, everyone. क्या बात है? Good morning. So happy to see you. So happy to see you all at 5 a.m. in the morning. How are you today? Let me open the chat box. Okay. So 5 a.m. masterclass participant, how are you today? Good morning. आपकी एनर्जी देख के एनर्जी आ गई, क्या बात है! Early morning, you are the champion. You are awesome. You are awesome. The way like you make up and wake up and be ready for this amazing masterclass on cash flow mastery. Once again, I welcome each one of you. Each one of you. हम स्टार्ट करेंगे अभी आज। पहले ना एक बार जो चैंपियन राइट नाउ 5 AM की मास्टर क्लास में शार्प 5 AM पे रेडी है टू गो ऑन दिस रोलर कोस्टर राइड विद मी, सो आई वुड लाइक every one of you present right now, just type in the chat box your city and the business that you are doing, your city and the business that you are doing, so that all the participant right now they are able to see their companion. जो companion है ना, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारी community है, and you know this community is getting increase. People are loving it. Like at Jagmohan Saturday 5 a.m. when you talk about a new topic about the finance, it gives us the energy for the rest of the week, and we are able to see the business. We are able to see the business from a new perspective. So I would like to know that आज हमारे साथ कौन 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 participant है. Okay, so right, Veena Negi ji from Delhi are into services. Abhinandan, good morning, Mr. Abhinandan. We had a discussion on chat. Now let's see. Okay, yeah, a business presenter. Somebody is from Mumbai, manufacturing of storage, and Delhi, instrument development. Okay, welcome everyone, welcome. So keep typing the name of the city. So we have right now 32 participant with us. Without wasting much of the time, let me tell you, I am going to begin right now. This is a 90-minute session. We are starting now and we complete by 6:30. And in this class, I am going to present one of the topic which will give you a sense, जो आपको ना वो सेंस प्रोवाइड करेगा, आपके माइंडसेट के ऊपर वो काम करेगा, कैश फ्लो मास्टरी के ऊपर काम करेगा. ओके, सो वेलकम यशवर्धन जी, वेलकम एवरीबॉडी. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक फॉर द डे. The core and the crux of 5 AM masterclass is how to flood your business and life. Now, I have written business and life with consistent cash flow. So I share a millionaire and billionaires designed to achieve complete financial freedom without wasting time in trial and any technical dependency. So what are the key takeaway for today? One of the aspect I'm going to share with you is 652500 rupees 6,52,500 formula and its impact on mindset and cash flow mastery. This I am going to share today, and I will be giving a framework with new examples to flood your business and life with consistent cash flow. So my dear friend, are you ready? Are you ready for this interesting roller coaster ride? If you are ready now more participants have joined. So I request participant to type ready in the chat box if you are really ready along with me to go on this journey of cash flow mastery. Ready? I am getting you ready. Yes, 5 a.m. people. Amazing, amazing. At this point of time, most of the people in India are not waking up, or they are into their dream world, and you are making your dream come true through your participation, through your active participation. Okay, I got your point.
a gift, a special gift, a special gift I'm going to give you. What is that special gift? There is a 1-day workshop on cash flow mastery 3.0. So this is, I am going to all those people who are going to stay till 6:30 for next 90 minutes. This 1-day workshop of cash flow mastery 3.0 is a live workshop. Just like I'm doing a 90-minute with you, I will be doing from 10 a.m. to 4 p.m. Generally, the price for this workshop is 10,000. But since you are now participating in masterclass, this is going to be held on 30th of October. The date I will confirm you. And I will provide you, everybody who is participating in today's workshop, you will get a free ticket for attending this masterclass. Okay, so let me come to the topic of the day. The technical content of today. I am going to talk about the financial intelligence. Yes, my dear friend, financial intelligence. When I talk about cash flow, my dear friend, cash flow is all about its management. In alone, cash flow has no significance unless I add management with it. कैश फ्लो सारा का सारा खेल जो है वो मैनेजमेंट का खेल है. देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपने शेयर करना हो, मैं बहुत बड़े बड़े एग्जांपल देने की जगह एकदम आपको रिलेट कर रहा हूं. जस्ट लुक एट योर मदर. Look at your mother, how she manages the money. If I look at my mother, if I look the mother of in my surrounding day-to-day life, घर में ना पैसे कम थे. पिताजी लिमिटेड पैसा कमाते थे. बहुत से दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया और देखा भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका सन है ना, उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है. वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं. जो इच्छा आवश्यकता जो चीजें थी, जितना भी कैश फ्लो आता था घर के अंदर, वो कैश फ्लो मैनेज होता है. आज भी मैनेज हो रहा है. आप अपने घरों के अंदर देखो. तो इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो जो है वो एक मैनेजमेंट का खेल है. इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग हाउ वी यूटिलाइज दैट मनी एंड लिव अ लाइफ ऑफ द कैश रिचनेस. Okay, around that, let me share with you 652-500. 652-500. This is something, a new number which I am going to engraved in your mind today. Why? Because फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ में जब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 652-500 कोड क्या है जो आज का न्यू और एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. सी व्हाट हैपन, वी ऑल experience or want to experience life of being rich. Life of being rich. When I say life of being rich, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच. जब कैश फ्लो की बात करते हैं और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच की बात करते हैं, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स कि हम कहते हैं यार ये बड़ा रिच पर्सन है, बड़ा रिच पर्सन है. ओके, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? लाइक if that mean to say he has abundance of money available with him, that mean to say he has lots and lots of money available with him. यही हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना बीइंग रिच के बारे में. यार ये तो मतलब ठीक है, मनी में खेलते हैं, कैश फ्लो के चैंपियन है, और दीज आर द पीपल. बीइंग रिच एक परसीव कंडीशन है. तो आप मुझे बताइए, now you would reply in the chat box, if somebody is being rich, then what he is able to do freely. If somebody is being rich, what is he able to do freely? वो freely क्या कर सकता है? उसके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, राइट? और उससे क्या क्या पॉसिबल हो पाता है? सारे एक्सपेंसेस उसके कवर हो जाते हैं. ओके, इफ ही इज कैश रिच, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो कैन आई से माइंडसेट ऑफ बीइंग रिच जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, द पीपल से आई हैव लॉट्स ऑफ मनी. नाउ अ सिग्नल हैज बीन गिवन टू द ब्रेन दैट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी. अच्छा, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच ना मैं आपको कैश फ्लो की मैनेजमेंट के साथ में बताना चाहता हूं. अच्छा, टेंशन फ्री एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच का मतलब है टेंशन फ्री, यानी कि सारी की सारी नीड फुलफिल हो जाती हैं. सो
फुलफिल हो जाती है, मीन्स यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट विदाउट वरिंग अबाउट द मनी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी होटल में गए, किसी भी रेस्टोरेंट में गए, दोस्तों के साथ है, लाइक देयर इज समथिंग, वो ना बार बार पर्स को नहीं देखना पड़ रहा, अपने अकाउंट को नहीं देखना पड़ रहा। बीइंग रिच के एक्सपीरियंस के अंदर क्या है कि जब आपका पर्सनल लेवल के ऊपर वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, यू डोंट वरी अबाउट द मनी, you buy any clothes of your choice and getting the experience of being rich. You purchase any item from market whenever you go for shopping, any item, like you are there in the market for a shopping and you like something, you grab it, you get it. So that is giving an experience of being rich, because that money is all the time, available to you. The money is available on demand. This is what I called cash on demand. Experience of being rich at 5 a.m. in live session. Today I'm sharing with you that you are being rich means you are making online payment for anything you like in the e-commerce site. You want to buy mobile, laptop, learning program, or anything, you have that richness available to you. With what? With the cash flow management. And you spend any money for decoration of your home. You say that festival season has just about to come, okay, let me decorate my home, let me do renovation. I have abundance of money available with you at any given point of time. Yes. उसके पास इतना पैसा है कि हर चीज सस्ती लगती है, प्राइस की कोई परवाह नहीं होती। दीक्षित अग्रवाल जी, यस, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दैट वर्ल्ड of being rich and peace of mind and tension free and satisfaction experience. Now what is that? You want to go somewhere with family, and you want to go alone, or you want to go with your friends, you just book ticket instantly and travel to any place you like and pay for the hotel or whatever resort you want to do. That gives you and the experience of being rich. And you are in a position help with money to anyone genuinely in need of money. Underline the word genuinely in need of money. All these things now I am going to tell you is actually possible right now with you. Are you interested? Are you interested to know about what 65250 I'm talking about and experience of being rich? If you are really interested, please type yes in the chat box. Okay, so when you type something in the chat box, that's create the wave of energy, and that wave really flow through this chat box to me, and we become the participant. You are participating, I'm participating, and we are really learning that way. Now सुबह सुबह 5 बजे जब मैं आपसे एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच की बात कर रहा हूँ, now absolutely you are ready कि जगमोहन ये मैनेजमेंट का बताओ यार, मतलब this is something which is exciting me. Now let me tell you, based upon my own experience and this aspect I have implemented, I have personally making sure that people in my community, in my circle, are very well aware of the code 65250. Okay, without any more excitement, let me take you to there. Now 65250. What I was talking about? I was talking about this number. See, once again, this number. Okay, and now let me take you to the 65250, that 2500. Now 2500 need to be there in the inside pocket. आप ना अपना जो पर्स है उसको चेक करो एक बार, मेरे कहे के ऊपर। आप फीमेल हैं तो आपका ये वाला पर्स चूज किया मैंने, आप मेल हैं तो ये वाला पर्स चूज किया। तो जनरली हमारा ट्रेडिशन है कि हम पर्स या कुछ कैरी करते हैं हमेशा अपने साथ, जो हमारे साथ रहता है। कुछ लोग मोबाइल को भी आजकल पर्स की तरह यूज करते हैं, उसके केबिन, उसके अंदर मनी डालने के लिए। सो माय पॉइंट हियर इज, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव 2500 इन द इनसाइड पॉकेट ऑफ योर पर्स, पता क्या है इससे ना, आप जैसे आप अपने किसी लव्ड वन के साथ में हो और सडनली मान लो इवनिंग में आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए
और वहां पर कुछ पसंद आ गया, कुछ आइसक्रीम था, कुछ लेना हुआ और मार्केट में से वॉक कर रहे थे, तो आपके माइंडसेट में ना हमेशा का हमेशा ये रहेगा कि आपके पर्स की नॉर्मल जगह नहीं, ये नॉर्मल जगह है, नॉर्मल नहीं, उसकी अंदर हिडन वाली जगह के ऊपर, लाइक अंदर हिडन जहां निकले भी बड़ी मुश्किल से, वहां पर आपने 2500 मैनेजमेंट की फॉर्म के अंदर साइड पे रख लिए। 2500 दिस फार्मूला, अच्छा आप ज्यादा रखना चाहते हो, डू इट, बट नाउ द कोड सेज 2500. Now what will happen? All the time when you are going walking around, you have the power of that 2500 available with you. और कई बार बच्चे या साथ वाले कुछ भी मांग लेते हैं या कोई इमरजेंसी में कुछ परचेज करनी है, तो क्रेडिट कार्ड का कई बार पिन नहीं चलता, बट यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ 2500 विद यू। आप बोलोगे ठीक है यार, ये तो मतलब क्या बता रहे हो जुगनून, हम जो है इतनी बड़ी तुम्हें कैश फ्लो का कोर्स समझ के सुबह 5 बजे क्लास करने के लिए आए और तुम हमें पर्स के अंदर 2500 रखना सिखा रहे हो। ठहरो, 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 बी विद मी, आई एम गोइंग टू टेक यू टू दैट कोड। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच के अंदर आपके घर में जो अलमारी है उसके पीछे कोने के अंदर या जो लॉकर है उसके अंदर मिनिमम 50,000 कैश, 50,000 मिनिमम कैश वहां पर आपने रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया टू एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच। अरे इसके पीछे अब क्या सीक्रेट है? व्हाट इज द सीक्रेट? अच्छा आप 50,000 रख लो, 1 लाख रखो, 10 लाख रखो, 50 लाख रखो, दैट इज ऑल अप टू यू। सो व्हाट आई एम decoding the code of the management, 50,000 has to be there, 50,000 has to be there in the लॉकर। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि क्या हुआ कि आप घर पर हैं और पिताजी ने कहा कि जरा देना 20,000 रुपए, मुझे किसी को पकड़ाने थे। सामने से कोई आ गया, आपका जानकारी आ गया या किसी को देना था। मैंने अभी भी देखा है लोगों को 20, 25, 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट आती है, तो इस बारे में अटेंशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो भाग के एटीएम में जाते हैं कैश निकलवाने के लिए। ओके, यू आर सेइंग नहीं नहीं जिगमोहन, क्या 50,000 की बात कर रहे हो? अरे तो 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कैश में पड़े रहते हैं। दैट इज योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिच। You do that at your choice, but the code of management say cash flow management at least 50,000 ना आपने उस लॉकर में साइड पे रख दिया। जैसे ये वाला पर्स के अंदर विजिबल नहीं था और ये 50,000 भी किसी ऐसी जगह पर होगा जो इजीली रीचेबल नहीं है, मतलब साइड पे आपने रख दिया। तो दैट मीन टू से आपके ब्रेन को हमेशा हमेशा पता है अब आपकी पॉकेट में 2500 है, आपके लॉकर के अंदर 50,000 सेपरेटली पड़े हुए हैं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सेविंग अकाउंट, आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, मे बी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनी बैंक यू आर यूजिंग, अपने सेविंग अकाउंट का आपने मिनिमम 1 लाख तो बैलेंस रखना ही रखना है। मिनिमम 1 लाख बैलेंस रखना है, मिनिमम। नाउ व्हाई दैट सी व्हाट हैपन, क्या बात है, वरुण जी ने कहा आई हैव एग्जैक्टली 2500 द वॉलेट राइट नाउ, अमेजिंग। ठीक है, तो आप उसके बाहर वाले में और भी रख सकते हो, अंदर वाला 2500 छुपा है वो आपको भी दिखना नहीं चाहिए। मैंने क्या बात की नेक्स्ट? 1 लाख की मैंने बात की आपसे सेविंग अकाउंट के अंदर, सो दैट मनी नीड टू बी देयर। अब जब वो 1 लाख वहां पर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उस समय क्या हुआ, आपके सेविंग अकाउंट में सामने अवेलेबल है 1 लाख रुपीज। तो कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप कभी होटल में हैं, कहीं स्टे कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी को छोटा मोटा फनी मनी ट्रांसफर करनी है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। आई हैव सीन पीपल इस फंडामेंटल को मान नहीं रहे। अरे वाह, अभिनव भारद्वाज जी, इम्प्लीमेंटिंग इज आल्सो हैपनिंग साइमल्टेनियसली, क्या बात है। ओके, तो बड़ी प्रैक्टिकल और मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे आप आए हो ना, तो आपको मैं वो मैनेजमेंट की चीजें देने वाला हूँ आज 6:30 तक, विच यू विल बी लाइकिंग दैट। तो रख लिया आपने 1 लाख रुपया सेविंग अकाउंट के अंदर, ज्यादा रखने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं 1 लाख हो गया उसकी एफडी करा दो, नहीं 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 भाई, देखो इतना लिक्विड, इतना मिनिमम लिक्विड तो बनता ही है, ये होना ही चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली रेडीली अवेलेबल। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वी हैव डेबिट कार्ड ऑल द टाइम अवेलेबल विद अस, एंड whenever we are on a go to every place or other place, this is the minimum amount। तो उससे क्या रहेगा आपके माइंड के अंदर? अभी बीइंग रिच की आ रही है। आगे बढ़ता हूँ। नाउ लुक एट दिस एस्पेक्ट, लुक एट दिस एस्पेक्ट। नाउ 5 लाख, दिस 5 लाख मैंने कहाँ पर रखे हैं? 5 लाख मैंने रखे हैं फिक्स डिपॉजिट स्वीप इन अकाउंट के अंदर।
उसका क्या मतलब होता है? आपने 5 लाख की एफडी करा दी। अच्छा, आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब जब भी कभी पैसा कम होता है तो उस एफडी में से ऑटोमेटिकली स्वीप करके इसके अंदर आ जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कैश रिच और बीइंग बीइंग रिच की लाइफ एंजॉय कर रहे हो, एंड यू आर सिटिंग समवेयर with your friends or with family or with somebody says ki okay, let's go to Goa, let's go to Missouri, let's go to any place in India, any place. तो जनरली आई हैव सीन पीपल स्टार्ट थिंकिंग ओके, गोवा जाने का प्रोग्राम बन रहा है, अब उसमें खर्चा होगा, उसके लिए टिकट बुक कराना होगा, देखेंगे। कई बार ना प्लान उस पर ऑफ द मूवमेंट के ऊपर बनते हैं। नाउ यू टुक अप and there was some good deal has already there on the internet or whatever, आपने अपने सेविंग अकाउंट से कट 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 बुकिंग कराई, टिकट बुक करा दी, आपके सेविंग अकाउंट से भी पैसे यूटिलाइज हो गए। अगर ज्यादा पैसे थे तो स्वाइप इन एफडी से सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट के अंदर आ गए। सेविंग में 3% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में आजकल 6-6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। बट द पॉइंट यू प्लीज नोट इट डाउन, the point you please note it down, that when this 5 lakh is already there, 5 lakh is already there and you are able to make any of the aspect. अब ये क्या किया मैंने? ये मैंने क्या किया? अच्छा, कई लोगों को मैंने ये देखा है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जैसे ही उसको खर्चने की बारी आती है तो बहुत सोचते हैं। इनफैक्ट कभी रेस्टोरेंट के अंदर कोई अलग से कोई आइसक्रीम भी मंगानी पड़ जाती है तो उसके ऊपर, अच्छा, दोनों तरह के विचार इसके अंदर हो सकते हैं। एक होता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक होता है जो आप दिल से चाहते हो और उसकी वैल्यू फॉर मनी भी है। मैं कहता हूं कि कोई भी चीज वैल्यू फॉर मनी है ना, उसके लिए तो हम 2 लाख भी खर्चने के लिए तैयार हैं। If something is not value for money, if something is not value for money, we are not going to spend even ₹20। तो 20 रुपए भी नहीं खर्चने हमने। अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो आप 2 लाख की तो बात ही छोड़ो, 20 रुपए भी नहीं खर्चेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड गिव अ सिग्नल टू योर ब्रेन, the signal I'm giving to your brain is that you are always surrounded by 6,52,500। इसके अंदर क्या था? 2,500 आपके पड़े हुए थे पर्स में, 50,000 सेपरेटली कैश, हार्ड कैश वो पड़ा हुआ था, 1 लाख सेविंग में है और 5 लाख रुपीज आपके फिक्स डिपॉजिट के अंदर हैं। दिस फिगर कम्स आउट टू रुपीज 652,500। So this become the code. Now what is possible with this? Point number 1, क्या हुआ कि जब आप जैसे 10 दोस्त, 20 दोस्त, 50 दोस्त, सारे के सारे एक ग्रुप का पार्ट है, उठते हैं बैठते हैं, एक आपने कल्चर बना लिया, कोड बना लिया कि हम बीइंग रिच का ग्रुप है, हर किसी के पास 652,500 तो होते हैं। थिंक ऑफ अ सिचुएशन, समबडी इज इन द नीड ऑफ मनी एंड अगर ये 10 लोगों का ग्रुप है तो 62 लाख तो वैसे ही आपके पास पड़े हुए हैं। 60 लाख मान लो, 60 लाख तो वहां पर पड़े हुए हैं। इस टू से अगर आप इंडिविजुअली भी किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आउट ऑफ दैट स्वीप इन एफडी 5 लाख की है, कभी भी किसी को 50,000, 1 लाख, 2 लाख देना हुआ, जेन्युइनली हेल्प करने के लिए यू आर एबल टू दैट। आपके फ्रेंड के साथ में है जो इसी क्लब का मेंबर है, वो कहता है कि चल यार इसके पास भी पैसे हैं तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वट एवर यू वांट टू बाय, वेयर एवर यू वांट टू बाय, in whichever situation you want to buy, the code 652,500 always work। अब condition क्या है? Now what is the condition? The condition of this rule is कि the moment you spend, next day you will fulfill this। If not next day, within 2 days. If not within 2 days, then within 3 days. If not within 3 days, then maximum 1 week। If you have utilized any money from this code, what is the code? If you have utilized any money from this code, you need to fill that gap। सेविंग में से 50,000 रुपए का बाय कर लिया, fill that gap। 3 लाख रुपए खर्च दिए, fill that gap। 4 लाख खर्च दिए, fill that gap within a period of next day। Now you will be able to see कि आप अपनी कंपनी से सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो वो यहाँ पर यूटिलाइज होने वाला है, सेपरेटली पड़ गया। अरे मैं कह रहा हूँ आप 6 करोड़, 600 करोड़, 6,000 करोड़ के अंदर ऑपरेट करो ना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द मिनिमम कोड। मिनिमम कोड, अब जब वो मिनिमम कोड हो गया तो टेल मी क्या ब्रेन को ये सिग्नल जाने वाला है कि यार पैसे नहीं है? या ब्रेन को सिग्नल क्या जाने वाला है कि हम कैश रिच है? बिजनेस को ये, आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाने वाला है, माइंड को ये सिग्नल मिलने वाला है कि देयर इज अ अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल।
Now my 5 a.m. wake up people, wherever the focus goes, energy flow. Now आपने अपने माइंड का जो थर्मोस्टेट है वो वहां पर सेट कर दिया है बीइंग रिच की कैटेगरी के अंदर. कितने के अंदर? ओनली 6,52,500. You will say, Jagmohan, amazing, yaar. मतलब you got this idea. मतलब just with 6,52,500, you have trained your mind. You have created an environment. इससे ज्यादा बताओ, अमीर से अमीर जिंदगी जीने के लिए किसी सिंगल इंडिविजुअल को, मैं आपकी बात कर रहा हूं. यस, आई एम टॉकिंग टू यू. आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन हु इज लिसनिंग टू मी. मैं आप ही से एग्जैक्टली बात कर रहा हूं. ये आपके लिए है, आपके लिए इंडिविजुअली. राइट. तो जितेंद्र जी, ये आपके लिए है. इसका मतलब है कि जैसे ही आप इस स्पेस के अंदर आ गए कि यार कुछ भी खर्चा करने के लिए वो पैसा अवेलेबल है, और हम इसको फुलफिल करने के लिए अपनी बिजनेस से, पर्सनल लाइफ से, कहीं से भी पैसे फुलफिल कर सकते हैं. सोचो ये वाला एक्सपीरियंस, अगर आप बहुत बड़े हैं और आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और या बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी सराउंडिंग के अंदर आपने राइट फाइनेंशियल एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर दी. राइट फाइनेंशियल एजुकेशन कि the money need to be spent where there is a value for money, minimum 10 time value of money. You all people are mature people, amazing people. You are not extravagant कि बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. पहले अपने ऊपर अप्लाई करो इसको. अपने ऊपर अप्लाई करके दिस इज द राइटफुल खजाना. मैं कहता हूं अमीर से अमीर बंदा, अमीर से अमीर. अभी चौथे नंबर पे मुकेश अंबानी है. अभी मुकेश अंबानी बिना 6,52,000 को अपनी पर्सनल लाइफ पे खर्च नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? वो अलग बात है, शौक अलग चीज है. आपने 5 लाख, 50 लाख, 70 लाख की कोई शर्ट खरीद ली, बट मैं कह रहा हूं कि बढ़िया से बढ़िया जिस तरह की एक शर्ट, पैंट, ट्राउजर, टाई और एनीथिंग यू गो टू द मार्केट. अच्छा, वाइफ ने कहा फ्रिज लेनी है, आपने कहा चिंता ही कोई नहीं है, फ्रिज आ जाएगी. नहीं तो फ्रिज वॉशिंग मशीन का नाम सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं. अरे यार, मतलब अब थोड़ा देखते हैं, वहां से पैसा निकालना पड़ेगा, किस अकाउंट से निकालना पड़ेगा. मैं आपको फ्री करना चाहता हूं 5 AM मास्टर क्लास के अंदर. Before giving that framework to you, I want to make you absolutely feel like a king size life. अपनी राजे की जैसी जिंदगी स्पेंड करो आप. राजे की जिंदगी. राजा मीन्स किंग, like kingdom. What else you need, my dear friend? What else you need? Once this basic, the law of Maslow says, when the basic level is satisfied, then you go to the higher level and go to the higher level and go to the higher level. Sometime it is so happening and it is very painful when I see many business owners like they are not taking their family to their particular aspect, because there was a demand of a laptop, there was a demand of a mobile. That was a genuine requirement. Say for example, there is a genuine requirement, but somehow anyhow we have something back in the mind. कि back in the mind में क्या है? Now listen once again. Back of the mind क्या है? पैसे नहीं है. पैसे नहीं है. अब बड़ी दिक्कत है, बड़ी तंगी है पैसे की. मनी इज अ स्केर्सिटी, मनी इज शॉर्ट. यार पैसे नहीं है, मेरी जिंदगी में पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है. नाउ टेल मी, आर यू गिविंग अ पॉजिटिव सिग्नल टू द यूनिवर्स और यू आर गिविंग अ नेगेटिव सिग्नल टू द यूनिवर्स? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल you are giving? If we are saying on any requirement coming to you, your पैसे नहीं है, तो एब्सोल्युटली ये प्योर नेगेटिव वेव्स हम दे रहे हैं. एब्सोल्युटली. यस माय डियर फ्रेंड. नाउ टेल मी, will this code will this code work in your life, or can you share something like that is happening in your life? If you will raise your hand, I will allow you to speak by clicking on the participant. The moment you will raise your hand, if you want to say something on this point, the moment I have shared with you, so who would like to share? If similar to that you are experiencing in life, or similar to that, now there are 50 पार्टिसिपेंट. सो जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस तरह से जो हमने कैश फ्लो मैनेजमेंट का काम किया, if somebody would like to, two people have raised their hand. Okay, so Dikshit Hariwal ji, please share what you want to share at this point of time. Yes, yeah, now you are there with me. Yes, Dikshit ji.
हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये बात तो सही है, इतना जो मैनेजमेंट कैश का जो पैसा रखने का, राइट। लेकिन एक्चुअली बिजनेस के अंदर एनी टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, यस। तो वो मैनेजमेंट हम रख नहीं पाते हैं। पर्सनल लाइफ में तो मैनेजमेंट मैंने जैसा लिखा भी है कि हम इतना पैसा रखते हैं कि हर चीज अपने को सस्ती लगने लगे, राइट। लेकिन बिजनेस के अंदर तो पैसे का जितना इन्वेस्टमेंट करे उतना कम पड़ता है। ओ यस, ओ यस। उसको कैसे हम ये करें कि हमारे को कभी उसकी कमी नहीं पड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। यस, तो मैंने क्या बोला, फ्लड योर लाइफ एंड बिजनेस हम्म, विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। अभी मैं बिजनेस के लिए थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर इस डिस्कशन के बाद बिजनेस के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश की बात करने वाला हूँ। थैंक यू सर। ओके, गॉट इट। नाउ so Raghunandan ji, what you want to share? Raghunandan Chodrapur. Yeah, very nice, Mr. Jagmohan Singh ji. Excellent, because this I have been, you are talking about 6,52,500. Always we can be the way you told, 50 lakhs, 10 lakhs, 55 lakhs, 25,000. So all these things perfect. Example awesome actually. See, you have been, I really appreciate you. It is very, very good. Thank you. Actually, I am. This is, you are making other people's mind in abundance manner. That's it. Yes, yes, you got the crux, Raghuji. Yes, you really got the crux. The moment I am keep my mind in the space of the abundance, now see what universe will do. Universe is going to do the magic in your personal life. The universe is going to do the magic in the life of your business. Thank you, Raghuji, for sharing your thoughts. Okay, thank you. And now, okay, more people are there. Satya Kevinji. Yeah. Yeah, Mr. Satya. Hello. Yes. Hello. Yeah. Good morning, Jagmohan Singh ji. Good morning. Thank you for sharing this time with us. Thank you. And my thing is, I am a 22-year-old right now. Yeah. So, what kind of steps should I take in my life to, have a cash flow abundant life? And my thing is, I want to create cash flow assets in my life. So, what are those few cash flow assets that I can create in my 20s so I can, have that abundant life very soon in my life? Okay, Thank you got it. so much. So have you entered into the business? Have you started some business in life? Oh, actually, I have thought about it. I am into import exports. I'm working in a steel exports firm right now. I just graduated last year, Okay. and eventually I want to have my own export firm as well. Okay. Right. Global export firm. Yeah. Right. That is going to be your biggest asset. Like many business owners are there in today's workshop, more than 50 people are right now available with us. So the asset that is really going to work in your life, the number one asset is business. Now this business is going to get in abundance of money in your life, and the business brings that money. And now that money, how it is to be done, I'm going to share in the second part of the presentation. I am going to go there. In the first 30 minutes, I wanted to cover about the personal aspect. Thank you. Right. And who else? I think R.K. Sabharwal had raised his hand. Okay. Rajkumar ji, have you raised your hand? Okay. Okay, let's proceed. So whenever anybody want to say, just type in the chat box, or I need to speak. Yes. Rajkumar Sabharwal. Yes, I am going to allow you. Just a second. Okay, here we go. Yes, when you raise your hand, your name come on the top. Yes, I.K. Sabharwal ji. Yeah. Good morning, sir. Good morning. How are you? Absolutely great. Great. So, sir, मैं ये सुन रहा था आपका 5,52,500 वाला कॉन्सेप्ट. तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है मेरे लिए. अभी रिसेंट एग्जांपल है कि मेरे एक सेल्समैन ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको मैं उसको रिवॉर्ड करना चाह रहा था 10,000 से. लेकिन मैंने सोचा कंपनी से खर्च करूंगा तो एक्सपेंडिचर जो है मेरे को इतना ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको पर्सनल अकाउंट से दे देता हूँ. मैंने उसको सेविंग अकाउंट से जब पैसा भेजा
मतलब बिलीव करिए उसने जितने थैंक्स मुझे किए हैं लाइफ के अंदर सर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं है कि मैंने कंपनी के ऊपर कुछ एडिशनल बोझ डाल दिया, मैंने अपने खर्चे में से उसको दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे पास जो ईश्वर ने पैसा दिया हुआ है, इन सबको बांटो और अपना ईश्वर भेजता रहेगा। दिस इज माय एग्जांपल। अमेजिंग अमेजिंग। ये आपने जो लास्ट में बोली है ना बात, वो है द लॉ ऑफ गिविंग, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। समटाइम इट सो हैपन कि हम बिजनेस के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस ऑपरेशन को मैनेज करो, उस ऑपरेशन को मैनेज करो, लेकिन उसके अंदर कैश फ्लो की मैनेजमेंट को हम भूल जाते हैं। बट व्हेन यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल विद यू, इफ यू वांट टू रियली गिव टू समबडी आउट ऑफ योर विल, that really give you abundance feeling in your personal life and your tuning gets set। होता है ना, जैसे हमने रेडियो एफएम चलाया है और एफएम के अंदर 98.3 सिग्नल लगाएंगे तो वही वाले गाने आएंगे, 103 लगाएंगे तो वैसे वाले आएंगे। So this is all about, first of all, setting up our brain in the right tone। Thank you Rajkumar ji for sharing your experience। Thank you very much sir। Okay, so let me proceed further in this aspect। Let me take you to the another aspect। Here we go। Okay, see, when I say personal life 652500 is the code you start following in your personal life. If you like, so you can modify it, you can take as it is, or you can do whatever the amendment you have done, because you are genius and amazing people। The point here is get the point, customize it to yourself। मिलेनियर्स एंड बिलियनियर माइंड वर्क व्हेन आई से, इस फ्रेमवर्क के अंदर ना, अब बिजनेस के अंदर सबसे पहली बात ये सुन लो इस फ्रेमवर्क के अंदर, वो ये है डू प्रॉफिटेबल बिजनेस बेस्ड अपॉन वैल्यू। सो व्हेन आई से प्रॉफिटेबल बिजनेस, आई मीन टू से रियली we need to create a business model in such a way that it is generating abundance of money। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं कि जब ये फ्रेमवर्क के अंदर पहला एस्पेक्ट है डू प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो बिजनेस में ना जो उसका मॉडल है, जो रेवेन्यू, जो कैश, जो मनी जनरेट करेगा, चाहे आप छोटा साइज का बिजनेस कर रहे हैं, मिडिल साइज का कर रहे हैं या बड़ा साइज का कर रहे हैं, मॉडल नहीं है ना, इंजन सेट नहीं है बिजनेस का, तो मजा नहीं आएगा। देखो कई बार लोग क्या होते हैं, दो चीजों में फर्क नहीं कर पाते। वन इज द बिजनेस मॉडल फॉर जनरेटिंग मनी बाय एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। क्या करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इन रिटर्न वैल्यू मिल रही है। एंड सेकंड पार्ट इज द एफिशिएंसी। वन इज द बिजनेस मॉडल। पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर व्हाट, वो ना एफिशिएंसी के ऊपर काम किए जा रहे हैं, सिस्टम पे काम किए जा रहे हैं। Who says system is not important? Systems are very important and that is one of the reason कि उसको स्केलेबिलिटी करके ऊपर ले जाएगा। बट माइंड इट, पहले हम अपने बिजनेस मॉडल को देख लें। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स आर देयर, चांदनी चौक में हैं, भागीरथ प्लेस के अंदर हैं और नेहरू प्लेस के अंदर हैं। अगर आप देखें उनकी टर्नओवर पहले 10 करोड़, फिर 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, लाइक दे आर मेकिंग देयर टर्नओवर इन अ ग्रेट वे। उसके प्रॉफिट भी देख लो, बोरियां भर भर के प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। द मोमेंट आई गो टू द एफिशिएंसी, उनके वहां पर ना अकाउंट्स भी ठीक तरीके से नहीं लिखे हुए, कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि एफिशिएंसी है ही नहीं, अकाउंट भी ढंग से नहीं लिखे हुए, लेकिन फिर भी दे आर लिविंग देयर लाइफ लाइक अबंडेंस एंड ह्यूज। पता क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि दोनों का 50-50% रोल है। दैट मीन टू से कि हमारा अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है ना, बिजनेस मॉडल, तो पीछे से पूरा का पूरा कैश फ्लो मैनेज हो जाएगा। Cash flow is all about the management। Now this thing we need to understand। Sometimes some startup come to me, sometimes some people who are already running the business for last 10 year or 20 year come to me, जो 10-20 साल से काम भी कर रहे हैं, उनका बिजनेस ना एक स्टैटिक एरिया के अंदर ही घूम रहा है। उनकी टर्नओवर जो थी 10 करोड़, फिर 10.25 करोड़ पूरे साल की, कभी 15 करोड़, कभी 25 करोड़, कभी 100 करोड़, उस सर्कल के अंदर ना वो एक लूप के अंदर फंस के रह गए। उनको क्वांटम लीप नहीं मिल रहा। कईयों ने तो 15-15 साल लगा दिए हैं। सपना है कि एक अपना ऑफिस खरीदना है, लेकिन किराए पर ही अभी भी चल रहा है, बिजनेस है, स्ट्रगल है, सब चीजें हैं। अरे वो एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, बिजनेस मॉडल के ऊपर काम नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड, get my point। My point is
the business model. Say for example, if you are doing a service, then what kind of unique service we are giving to the client and adding real significant value. So what am I charging from them, and what is my payment terms on that? If I'm doing the manufacturing, if my GP in manufacturing is 5% or 7% or 10% or even 15%, will I be able to make any profit in my lifetime? No. I will always remain busy throughout the life, busy. Nothing is going to happen. Nothing is going to happen, because the model is not that perfect. If I make all the system, all the processes, all the aspect in your life, but the business model is not strong, then abundance of cash is not able to get generated, my dear friend. उस केस के अंदर हमें क्या करना है कि क्या हम राइट बिजनेस मॉडल, यानी कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो 40% जीपी है क्या, ट्रेडिंग है तो मेरा 5, 10, 15% का जीपी मार्जिन पे एक यूनिक प्रोडक्ट के अंदर फोकस कर रहा हूं, ऐसी मार्केट के अंदर लेकर जा रहा हूं जो कि न्यू मार्केट है, कंसेप्ट आइडिया चेंज कर रहा हूं, दैट बिजनेस मॉडल। एज ए कैश फ्लो कोच ना, लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं कि जगमोहन यार मेरा ना कैश फ्लो ठीक नहीं चल रहा, मेरा कैश फ्लो ठीक नहीं चल रहा, पैसों की दिक्कत रहती है, इसको ठीक करो। अच्छा कितने पैसे मैं कहाँ रखूं, बिजनेस में मैनेज करूं, कितनी सैलरी निकालूं, इसकी एफडी करा दूं? मैं कहता हूं रुको, थोड़ा ठंड लो, थोड़ी सांस लो, थोड़ा आराम करो, और सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, शो मी योर बिजनेस मॉडल, शो मी योर बिजनेस मॉडल। How many of you are able to relate with me on this point कि कभी कभी ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ में, हम शांति से अपने बिजनेस मॉडल को ही अपग्रेड या इवन स्टडी या इनोवेट नहीं कर रहे हैं और उसी कैश फ्लो की मैनेजमेंट के अंदर छुपे हुए हैं। इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट, देन प्लीज टाइप आर in the chat box if you are able to relate. Business model, if you are able to relate, see, please type R in the chat box. Yes, I am getting here. You are able to relate. If you really relate, see what happened, अगर business model ही ऐसा मैंने लगा दिया कि कोई बात नहीं, मुझे लॉस पे चलाना है, नाम तो चल रहे, मैं तो ऐसे बिजनेस ओनर से मिला हूँ and they are great human being, लेकिन वो क्या कहते हैं, उन्होंने पिछले जमाने से हमेशा सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं, वो सुनते आए हैं बस मशीन चलनी चाहिए, काम चलता रहना चाहिए, मशीन पे माल चढ़ा रहना चाहिए, लेबर खाली नहीं बैठनी चाहिए, बस चलते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए लॉस मेकिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला भी काम क्यों ना कर रहे हों। दिस अप्रोच इज पार्शली ट्रू माय डियर फ्रेंड, पार्शली। और कितना पार्शली ट्रू? 25% पार्शली ट्रू कि काम चलते रहना चाहिए। अगर आप बड़े ध्यान से बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे, अगर आपने मशीन चलती ना रहने दी होती, अगर आपने लेबर को जबरदस्ती माल बनाने के लिए, बिजी करने के लिए कहीं से भी किसी काम में ना लगाया होता, तो शायद आपको लॉस ना होता, शायद आप ज्यादा पैसे कमा पाते, शायद मे बी। मैंने देखा अपनी सारी लेबर, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करके हमने फिनिश गुड्स को तैयार कर दी, और आज भी वो फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़ी हुई है। जब मैं स्टॉक टेकिंग करता हूँ तो देखता हूँ कि गोडाउन के अंदर तो माल पड़ा हुआ है। कौन सा पड़ा हुआ है? 3 महीने से चला नहीं। बनाया क्यों था? ऑर्डर था, एंटीसिपेशन में बना लिया था। क्यों? हमें लगा काम तो चलना चाहिए। अगर नहीं बनाया होता तो मेरी उस समय खर्चे बचते, और हो सकता है कि मैं रॉ मटेरियल को रिटर्न करके आज की डेट में लेटेस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो के हिसाब से जो मेरा काम है मैं वो कर पाता। बिजनेस मॉडल से व्हाट इज योर रेवेन्यू, what is the stream of revenue, what is the various segment of your revenue, और उस रेवेन्यू के अंदर कितना मेरा मार्जिन छुपा हुआ है। इन दैट बिजनेस मॉडल आई रियली नीड टू वर्क। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द एक्सेस कैश रिजर्व? अभी आता हूं। दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आई विल कम टू दैट। द फर्स्ट फ्रेमवर्क पॉइंट इज बिजनेस मॉडल। डू प्रॉफिटेबल बिजनेस माय डियर फ्रेंड, डू। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट अपने बिजनेस के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज कैश फ्लो मॉडल। नाउ whatever business you are doing, and whether that business is giving money to you or not, whether that business is adding value to you or not, you need to have one dashboard. Now what is that dashboard? This is cash flow dashboard. Are you able to see?
This one is the cash flow dashboard, my dear friend, I am talking about. दिस इज द कैश फ्लो डैशबोर्ड। अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर एक स्कोर है, तो आप मुझे जेन्युइनली बताओ। अच्छा, मैं पहले ये पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू नाउ टू राइट नाउ देयर आर 52 पार्टिसिपेंट अवेलेबल लाइव इन दिस 5 AM सेशन। आप ना चैट बॉक्स में 1 टाइप करो अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, 2 टाइप करो अगर आपने 2 अटेंड की है, 3 करो अगर आपने 3 की है, वट एवर द नंबर। इफ यू आर अटेंडिंग फॉर द first time, then type 1. If you have already attended this master class, then type 3. So I am giving new perspective. Okay, many of you are attending for the first time who are looking at this framework. Those who are attending second or third time, my dear friend, I am presenting this framework with the new example, and the more and more and more and more I am going into the core of it, I am able to relate with it and getting it implemented in your business. Every day I have 8 communication 1-to-1, and in 8 communication every day I go into deep detail with every business owner. मेरा 1-to-1 का सेशन होता है। Okay, by replying in the chat box you are able to see। देखो अब क्या करना है, मैंने आपको ये बोला कि आपने ना प्रॉफिटेबल बिजनेस का मॉडल तैयार करना है। सो व्हेन आई डू 1-to-1, और जब हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ना बिजनेस मॉडल को ही चेक करेंगे, बिजनेस मॉडल को ही चेक करेंगे। दैट हैज टू बी, अब देखो कितना आइडियल बिजनेस मॉडल है कि अगर आपका जीपी मार्जिन, अगर आप सर्विस के अंदर है तो वो निश प्रोडक्ट है, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर है तो अच्छा मार्जिन लेके चल रहे हैं, खर्चे आपके लिमिटेड हैं, और बिजनेस मॉडल जो है उसकी पेमेंट टर्म आपके फेवरेबल है, तो उन पेमेंट टर्म के हिसाब से फिर बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस सेट होंगे। प्रोसेसेस हमेशा बाद में सेट होते हैं माय डियर फ्रेंड, नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। प्रोसेसेस हमेशा बाद में सेट होते हैं, मॉडल सबसे पहले आता है। तो क्या मॉडल एंड तक वर्केबल है? जैसे अभी व्हाइट हैट जूनियर का बहुत ऐड भी आ रही है, उन्होंने पूरा का पूरा अपना पहले बिजनेस मॉडल तैयार किया, उसका प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सेप्ट किया, उसके बाद उठा के मार्केट में लॉन्च कर दिया। आप क्रेडिट देख लो, CRED, उन्होंने भी पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी करने के बाद वो कैश इनफ्लो किए चले जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे डिस्काउंट दिए चले जा रहे हैं, बट दे आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल यू आर डूइंग। अच्छा, आप जो है please reply in the chat box if you are into business. If you are into business, then please, most of the people participating in today's workshop are the business owner or financial controller. तो आप मुझे बताओ कि क्या आपका बिजनेस मॉडल, क्या आपका बिजनेस मॉडल जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो मॉडल फाइनल है? सिंगल पेज के अंदर, जो एक पेज के अंदर देख के समझ आ जाए वो बिजनेस मॉडल तैयार है? इफ यस, देन रिप्लाई यस, इफ नो, देन रिप्लाई नो in the chat box. That business model which you can explain on a single sheet, this is your business model. If it is yes, then please type yes in the chat box. Okay, I'm getting some of the team members, some of the participants are sharing no, some of the participants are sharing yes. There is always a next level. There is always a next level. Now, what you need to do is you need to set your business model. This I will be able to do in 1-to-1 with you, in which we will review your existing business model and then we will predict. जैसे आर्किटेक्ट नहीं होता, आर्किटेक्ट जो है वो पहले नक्शा पूरा तैयार करता है, मैप पूरा तैयार करता है, और वो मैप पूरा तैयार करने के बाद फिर उसके बाद रियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस ही करना है। दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड दिस योर बिजनेस इज द बिगेस्ट एसेट। उसको आपने कैसे मॉनिटर किया? थ्रू दी कैश फ्लो मॉडल। नाउ दिस कैश फ्लो मॉडल सिंगल शीट के अंदर यू आर एबल टू सी एट एनी मंथ एंड, क्या मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस कितना है, व्हाट इज माय लिक्विड डिपॉजिट, और ये कितने महीनों के लिए सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट कितने महीने का रहेगा? अभी लॉकडाउन आया, 2 महीने के अंदर जो है सारे बिजनेस की ऐसी की तैसी फिर गई, जो कि प्रॉपर पीछे से प्लान तरीके से नहीं चल रहे थे, जो कैश फ्लो डैशबोर्ड को फॉलो नहीं कर रहे थे। नाउ यस्टरडे का इकोनॉमिक्स टाइम आप पढ़ना, जिसके अंदर लिखा है जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं इस अर्थ पे, लॉकडाउन के दौरान उनकी टोटल नेटवर्थ 17% से बढ़ गई है, 17% से बढ़ गई है। यानी कि रिच और रिच हो गए हैं। जो कैश फ्लो के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उनका तो माय डियर फ्रेंड ऑलरेडी नेटवर्थ इंक्रीज हो गया है। तो वो कैसे?
ये जो आपके सामने मैंने एक स्क्रीन के ऊपर फुल पेज की शीट दिखाई है ना, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंप्लीमेंट कर लो और पूरी तरीके से देखना शुरू कर दो इसको। पीछे की जो शीट्स हैं फाइनेंशियल समरी की, अगर आप उसको इतनी इन डेप्थ में नहीं भी जाकर अभी देख रहे उसको, तो आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड, माइंड इट, आज के 5 AM के अंदर बिल्कुल लिख लो अपने पास, क्या मुझे पता है कि मेरा कैश का फ्लो पूरे साल का क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है बिजनेस का, क्योंकि यही से तो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी है, जिसके अंदर रेवेन्यू की प्रोजेक्शन भी इंक्लूड है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या रेवेन्यू है, टीवीसी, जीपी, फिक्स्ड कॉस्ट, एनपी, सिंगल पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है। कैश फ्लो के अंदर ओपनिंग कितना था 10, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो गया, कितना अवेलेबल है। दिस स्कोर कार्ड इज अवेलेबल। यस्टरडे दिल्ली डीसी ने हरा दिया है दूसरी टीम को, आरआर को, वो स्कोर बोर्ड के बेसिस के ऊपर कितनी एवरेज चाहिए। सम टाइम ये स्कोर बोर्ड ना हमें सिग्नल देता रहता है, बिजनेस का स्कोर बोर्ड क्यों नहीं है, बिजनेस का स्कोर बोर्ड क्यों नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर able to share with me right now, how many of you have this level of clear cut scoreboard defined for you? If you have, then please type yes, and if you don't have, please type no. Just let's see कि आपका इतना क्लियर कट डिफाइन बिजनेस का कैश फ्लो का डैशबोर्ड है, जहां पर एक ही जगह पर आप देख सकते हैं सब चीजों को, एक ही जगह पर देखो इसके अंदर क्या नहीं है। थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। देखो आज की 5 AM के अंदर अगर आपने कुछ नोट लेके जाना है ना अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए 650 to 500 लेके जा रहे हो, अपने बिजनेस के लिए एक सिंगल पेज लेके जा रहे हो, और जब बिजनेस मॉडल मेरे साथ 1 to 1 आप डिस्कस करोगे डिटेल के अंदर, क्योंकि हर बिजनेस का सेपरेट होता है, तो वी विल सी। पहले हमने मॉडल बनाया, मॉडल बना के देखा कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही सिंगल के ऊपर। 15 सेकंड के अंदर डिसीजन हो रही है, 15 सेकंड के अंदर डिसीजन हो रही है कि मेरे बिजनेस की रेखाएं किस तरफ चल रही हैं। रेखा होनी चाहिए थी ब्लू कलर की, चल रही है रेड कलर की। व्हाट वाज माय प्लान वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज माय एक्चुअल वर्किंग कैपिटल। और जो डे टू डे बेसिस के अंदर, somebody asked me in the question, the डे टू डे बेसिस के अंदर जो हम कैश फ्लो की समस्या से डील कर रहे थे, बिजनेस ऑलवेज डिमांड मनी। You know why business always demand money? Because of this cash conversion cycle. How many debtor days, how many inventory days, how many creditors days, and how many cash conversion cycle are there? And where my money is stuck up in this aspect, in the current asset, my account receivable are 16 crore, inventory 7 crore, cash and bank 1 crore, other 1 crore. And my current liability is 10 crore. That is 3 crore for account payable, 5 crore for bank overdraft, 1 crore for expenses payable, and 1 crore for other. Total is 15. So 25 minus 10 is equal to 15 is why 15 crore is a working capital amount that has been invested into the business. Now, when you have this dashboard and you decide, यार ये वाला business तो मेरा पड़ोसी या मेरा competitor या best case scenario या मेरा जो cash flow coach जगमोहन है वो कह रहा है यही वाला बिजनेस जिसके अंदर आपने 40 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, दिस बिजनेस do not need 15 crore working capital. This business need only 5 crore working capital. Then what will happen when you will start working on those lines? 10 करोड़ रुपए आपके एग्जिस्टिंग में से ही फ्री होने वाले हैं। वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट, उसने अभी रिसेंटली एक घर परचेज किया है, वो भी पूरा डाउन पेमेंट देके, कोई लोन वोन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, और घर भी उसका 9 करोड़ रुपए का है। क्या नहीं, और वो सोचता ही रहता था घर खरीदना है, घर खरीदना है, घर खरीदना है। मैंने कहा घर तो आ ही जाएगा, डोंट वरी, तुम्हारे बिजनेस से आ जाएगा। उसने मेरे साथ अग्रेसिवली काम किया, काम करने के बाद मैंने उसके बिजनेस मॉडल पे काम किया और कैश फ्लो के ऊपर काम किया। उसके 18 करोड़ रुपए फ्री हो गए बिजनेस के अंदर से, 18 करोड़ रुपए। आप देखो, आपने 18 करोड़ फ्री करने हैं, 1.5 करोड़ फ्री करना है, 50 लाख फ्री करने हैं बिजनेस के अंदर विद दिस कैश फ्लो डैशबोर्ड। अच्छा, इसमें आपको करना भी क्या है, आपने अपनी टीम से ये बनवा लेना है, आपने अपनी टीम से ये बनवा लेना है और इसको देखना है। अगर इसको बनाने में, समझने में, करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे शेयर करो ना। आई एम देयर, I'm on a mission to really provide those simplest tool to everybody which are practical, workable, which is working absolutely right. So you really need to work on that. This is the cash flow dashboard, my dear friend. अच्छा, कैश फ्लो का बन गया मॉडल। तो मेरे से अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा चैट बॉक्स के अंदर कि भाई अब करें क्या। नाउ वी नीड टू क्रिएट कैश रिजर्व। व्हाट इज द कैश रिजर्व?
प्रॉफिटेबल बिजनेस करके आपने कैश फ्लो मॉडल के अंदर देखा कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो स्पेसिफाइड परसेंटेज नीड टू बी ट्रांसफर टू कैश रिजर्व। मैं कहता हूं चाहे आप अपने प्रॉफिट का 50% ट्रांसफर कर दो। अगर प्रॉफिट हर महीने आपको नहीं पता रहता, वो तो पता रहना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल समरी बनाओगे, कैश फ्लो मॉडल बनाओगे, तो आपको पता ही लगेगा। जब आप कैश फ्लो मॉडल बनाओगे तो आपको पता रहेगा ही। अगर फिर भी अभी इमीडिएट स्टार्ट करना चाहते हैं, जब कैश फ्लो मॉडल बन जाएगा आपका, अपनी टर्नओवर का, इफ यू आर इन सर्विस प्रोवाइडर, वट एवर टर्नओवर, और ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, बिल्डर, वट एवर द कलेक्शन इज कमिंग टू यू, मे बी 0.1%, 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, whichever the thing you think right, create the cash reserve, create the cash reserve. Now let me ask you, what will become possible? What will become possible? Now tell me, participant, अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हुए कैश फ्लो से अपना मॉनिटर कर रहे हो बिजनेस को, और वहां से कैश रिजर्व जनरेट हो रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या पॉसिबल हो जाएगा इफ यू आर एबल टू क्रिएट कैश रिजर्व। कैश रिजर्व, नाउ व्हाट विल बी पॉसिबल? थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो। अब मैं आपको समय देता हूं सोचने के लिए। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, और इफ यू वांट टू स्पीक देन रेज योर हैंड। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक विल बिकम पॉसिबल इफ यू आर रियली एबल टू क्रिएट कैश रिजर्व इन योर बिजनेस? आपने कहा कैसे क्रिएट करूंगा? मैंने कहा जितनी कलेक्शन आ रही है उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज आप ट्रांसफर करो। इफ यू आर एबल टू डू दैट, what do you think? Who would like to type in the chat box? Or I know you are typing, okay. So what will become possible? आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं, अगर आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कैश रिजर्व से क्या पॉसिबल है? कैश रिजर्व से क्या पॉसिबल है? जब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं ना, जिन लोगों के कैश रिजर्व क्रिएट नहीं हो रहे वो भी होने शुरू हो जाते हैं। नाउ टेल मी, व्हाट इज पॉसिबल? नाउ माय डियर पार्टिसिपेंट, व्हाट इज पॉसिबल इफ यू आर एबल टू कैश रिजर्व? अगर कैश रिजर्व क्रिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? उससे ना पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, उससे ना इंक्रीज ऑफ बिजनेस होने वाला है उससे, कैश रिजर्व क्रिएट से। देखो देखो, जो कैश रिजर्व को बड़ा लाइटली ले रहे हैं ना, तो उनके लिए पॉसिबल होने वाला है पीस ऑफ माइंड। तो सुशांत जी ने कहा, हाउ इट्स पॉसिबल टू क्रिएट कैश रिजर्व इफ यू आर इन डेब्ट सिचुएशन एंड कैश फ्लो इज नेगेटिव? सुशांत जी, डेब्ट चल रहा है ना, उसके अंदर जो ओडीसीसी लिमिट है, आपकी ओडीसीसी लिमिट है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। अगर 5 करोड़ की ओडी है तो एक को कर दो 4 करोड़, एक को कर दो 1 करोड़, दोनों को मिला के 5 करोड़। बैंक सेम का सेम रहा। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास कलेक्शन आती है, जो आपने 4 करोड़ की ओडी है ना, सारी कलेक्शन उसी के अंदर लिया करो, क्योंकि दोनों यूज्ड है, सारी ओडी में लिया करो। अच्छा, अब एक स्पेसिफाइड परसेंट ओडी 1 से ओडी 2 में ट्रांसफर करो। इस डिसिप्लिन को ले आओ। आप देखोगे जिसके अंदर 1 करोड़ की यूज लिमिट थी, कम होते होते 90 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 50 लाख कम होनी शुरू होगी। वो आपका विद इन द बिजनेस कैश रिजर्व है। तो रूल बना दो, जो मेरा सेकंड अकाउंट है जिसका नाम मैंने कैश रिजर्व रखा है, उसके फंड को मैं यूटिलाइज करूंगा सिर्फ एसेट क्रिएट करने के लिए, बेटर आरओआई के लिए, एक्सपेंशन के लिए, उन चीजों में। वरना क्या होता है, हम उसी चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं। ये जो आज से यानी कि अक्टूबर, from this moment onward, whatever the cash reserve you are creating, putting into the separate OD account, इससे क्या हुआ, डेप्ट भी कम हुआ। पैसे बाहर नहीं निकाले, बाहर निकालते तो वहां पे कुछ ना मिलता, यहाँ 14% ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपने कहा सुशांत जी ने कि कैन वी पुट इनटू अवर पर्सनल अकाउंट इफ इट इज ए पार्टनरशिप फर्म? देखो, 2 स्टेप में कर लो। अगर आपका ओडीसीसी चल रहा है, पहले 2 ओडीसीसी में स्प्लिट करके उसको कम करो, ताकि बैंक का 9% का ब्याज ना लगे सुशांत जी, ताकि बैंक का ब्याज नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ओडीसीसी खत्म ही कर देते हो, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट में पहले पता क्या ट्रांसफर करोगे? पहले सुशांत जी आप ये डिसाइड करो कि जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं एज ए पार्टनर काम कर रहा हूं, उसके अंदर जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ सैलरी कितना होना चाहिए आपका, जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी भी बिजनेस को दे रखी है, उसका क्या जस्टिफाइड रेंट होना चाहिए, तो उसको निकाल के ना अपने सेविंग अकाउंटों में ट्रांसफर करो सबसे पहले। उसके बाद जो बचेगा फिर उसको और निकालेंगे। बट business is a separate legal entity, personal is a separate legal entity. This is how it is to be done. Now, how it will work in your business when you will do a one-to-one with me, I will absolutely
absolutely tell you in this account you will be able to do. बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर मेरे से आज कनेक्टेड है 5 AM पे, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैश रिजर्व जब आपका आ गया ना, तो तभी यशवर ने बताया कि कैश रिजर्व क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ, न्यू बिजनेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, हेल्प फॉर क्वांटम शिफ्ट। थैंक यू यशवर्धन गुप्ता जी। सबसे बड़ा पॉइंट देखो लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, हेल्प फॉर क्वांटम शिफ्ट। क्वांटम शिफ्ट देखो, हम पता क्या कर रहे हैं, उसी एग्जैक्टली सेम दायरे के अंदर गोल 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 वही घूम रहे हैं। जैसे सौर मंडल के अंदर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, मार्स अपनी धुरी पे घूम रहा है, हम ना लगता है हमें कि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑर्बिट शिफ्ट नहीं हो रहा, जिसको उन्होंने क्वांटम शिफ्ट की बात की है। क्वांटम शिफ्ट कैसे होगा? क्वांटम शिफ्ट होगा इस फ्रेमवर्क से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बिजनेस को एम्प्लॉय की तरह ही किए चले जा रहे हैं। लिसन टू दिस पॉइंट, लिसन टू दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली, जो अभी यशवर्धन ने लिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बिजनेस को जस्ट लाइक एक एम्प्लॉय माइंडसेट से किए चले जा रहे हैं। अकाउंट्स वालों आप भी सुन लो, एम्प्लॉय माइंडसेट का मतलब ये है कि बस मतलब बिजनेस में काम करना है, बस काम करना है, बस जाना है, प्रोडक्शन हो रही है, सब चीजें चल रही है, काम करना है। कुछ लोग तो ऑफिस नहीं जाते और उन्होंने अलग तरीके का काम अपने ऊपर ले लिया है, तो वो घर पे बैठ के या किसी बाहर बैठ के वहां पर नई क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, वहां से भी वो उसी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। बाहर बिजनेस के बैठे हो तो नई क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम जंप करने के लिए, अब क्वांटम जंप करने के लिए अगर मान लो आपके पास आइडिया आ गया, तो कैश रिजर्व कहाँ पर है? कहाँ है कैश रिजर्व? उसको फंडिंग करने के लिए जरूरी है हर बार बैंकों के ऊपर डिपेंड करना? कोई जरूरी नहीं है बैंकों पे डिपेंड करना। हमने अपना सेकंड लाइन ऑफ क्रेडिट ही क्रिएट कर लिया थ्रू कैश रिजर्व। अरे बिजनेस के अंदर ही रहने दो ना उस कैश रिजर्व को। और बिजनेस मॉडल के अंदर जब आपने कोलैबोरेट कर लिया, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, बिजनेस मॉडल के अंदर नई क्रिएटिविटी लेकर आए। जैसे मेरे से एक बिजनेस ओनर दोस्त है, उन्होंने शेयर किया, मैं किसी प्रोग्राम के अंदर था, तो वो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर थे। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर पहले वो अंडर गारमेंट बनाया करते थे, तो करते 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 एक उनके पास एक सप्लायर आया, उन्होंने उनसे बात की, बायर आया, उनसे बात की कि हमें इसी कपड़े का कोई और चीज भी चाहिए। आज की डेट में वो टी शर्ट के बिजनेस के अंदर आ गई। ये मैं उनसे उनकी लाइव शेयरिंग के अंदर मैं प्रेजेंट था। तो क्या हुआ, खड़क क्वांटम शिफ्ट हो गया उसके अंदर। जहां पर इनके अंडरगारमेंट के बिजनेस के अंदर 3 महीने की उधारी चला करती थी, अब जब वो टी शर्ट के बिजनेस के अंदर आए, अपनी मर्जी से हाई क्वालिटी की टी शर्ट बनाते हैं, वही जगह वही सब चीजें, और वहां पर एडवांस 45 दिन पहले पेमेंट लेके फिर उनकी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी होल में सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने वो क्वांटम शिफ्ट किया। हो सकता है कि उनको जब उन्होंने शिफ्ट किया होगा तो फंड की रिक्वायरमेंट होगी। उस तरह के बड़े आइडियाज के लिए आपको कैश रिजर्व चाहिए, चाहे उसको विद इन द बिजनेस क्रिएट करो, चाहे उसको आउटसाइड द बिजनेस क्रिएट करो। तो फ्रेमवर्क माय डियर फ्रेंड आप सुन लो, ये फ्रेमवर्क ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्रिएट कैश रिजर्व। अगर ये 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट से एक भी क्वाड्रेंट पूरा नहीं होता तो हम कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ की बात नहीं कर सकते। तो ये फ्रेमवर्क ना छाप लो अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि जब मैं कैश रिजर्व की बात करता हूं, बड़ा सिंपल है। कैश रिजर्व की रेशो आपने डिसाइड करनी है। अगर आप अमाउंट डिसाइड करते हो ना, मैं हर महीने 50,000 निकालूंगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, रेशो। रेशो या तो कलेक्शन का परसेंटेज हो सकती है, जितनी कलेक्शन होगी उसका 0.01% कर लो। मेरा एक क्लाइंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर है, और वो उसने फार्मूला क्या लगाया, 0.05% जो है जितनी कलेक्शन आएगी मैं ट्रांसफर करूंगा। मुंबई के अंदर ही है, मजाक मजाक में 2 करोड़ रुपए उसके सेपरेटली रिजर्व के अंदर इकट्ठे हो गए। कंडीशन मैंने क्या लगाई, देख आप बिजनेस ओनर है, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनको बोला देखो आपके अकाउंट वालों है ना, अकाउंट्स वालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो। अकाउंट्स वालों को क्या दे दो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो कि जो कलेक्शन आएगी इस वाले अकाउंट में मेरे से पूछे बगैर, क्योंकि हमने इतने सारे खर्चे पहले ही पाल रखे होते हैं या सोच रखा होता है पेमेंट आएंगे, आती पेमेंट बाद में है। एज ए बिजनेस ओनर फटाक उसको हम खर्च पहले कर देते हैं। लेकिन जब आपने कैश रिजर्व की रेशो डिसाइड कर ली, whatever the amount coming to you as a collection, and that money is getting transferred to a separate, अगर कोई ओडीसीसी नहीं है, ऑलरेडी डेप्ट फ्री कंपनी है, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, आप अपना उसको लगाओ, अपने सेपरेट अकाउंट में करो, और अगर ओडीसीसी है तो 2 में स्प्लिट कर लो। लेकिन करना जरूर है। तो सिद्धार्थ जी ने कहा
कि कैन वी मेक कैश रिजर्व इन इक्विटी। उससे पहले सुशांत जी ने कहा कैन वी पुट इनटू पर्सनल अकाउंट, ओके ये हम बात कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी ने कहा कैन वी मेक कैश रिजर्व इन इक्विटी। राइट, सारा का सारा फोकस ना आपका मनी मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। एसेट क्रिएट करने हैं, आपका पोर्टफोलियो आपको अलाउ करता है इक्विटी में डाल दो तो डाल दो, अगर पोर्टफोलियो अलाउ नहीं करता तो मत डालो। नॉर्मल कोर्स में स्टार्टिंग कर रहे हो, कैश रिजर्व को सिंपली एफडी में रखो और अपॉर्चुनिटी की वेट करो। सारा का सारा खेल टाइमिंग और वैल्यूएशन का है, सारा खेल टाइमिंग और वैल्यूएशन का है। जब सही टाइमिंग और वैल्यूएशन नहीं आती है आपके पास तो इक्विटी में सीधा ही मैं रखने की सलाह नहीं देता। जब आप अलग से अपने फंड को मैनेज करना शुरू कर दोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी कैसे करना है। आंसर टू योर क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी, डायरेक्टली सारा पैसा इक्विटी में नहीं, सारा पैसा एफडी या लिक्विड फंड के अंदर। उसके बाद फिर डिसाइड करना जो फ्रीली अवेलेबल है टाइम होरिजन के हिसाब से। हम ऐसा ना करें कि इधर से पैसे सारे इक्विटी में डाल दिए, मार्केट क्रैश हुई, जो रिजर्व था उसका भी काम बराबर हो गया। द बैलेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज निकाले तो सही एक बार उसके लिए, दैट इज देयर। ओके हाँ, कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो पोस्ट सीधा मुझे कर रहे हैं। ओके तो आप करें पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, यस पैनलिस्ट एंड अटेंडीज पे करें, ऊपर सेलेक्ट करें। ऊपर आप ललित जी थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। जब आप चैट बॉक्स पे क्लिक करते हो तो इंडिविजुअल नाम आ रहे हैं, पैनलिस्ट एंड अटेंडीज आ रहे हैं, तो उस पे करें ताकि सबको वो दिखाई दे। थैंक यू। यस नाउ नाउ अब आगे बढ़ता हूं मैं आपको। कैश रिजर्व रेशियो आपने क्रिएट कर लिया एंड द नेक्स्ट योर फेवरेट द फोर्थ point of the framework is follow jar technology. When I say jar technology, I mean to say like this. जो अब आपने कैश रिजर्व क्रिएट कर लिया, अब ये मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर कंपनी में है तो कंपनी के तो ओडीसीसी के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है या सेपरेटली आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने इंडिविजुअली एज ए पार्टनर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोवाइडर निकाल लिया तो दीज आर दी जार। 10% कहाँ गया? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर, 10% प्ले अकाउंट के अंदर, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग, 10% एजुकेशन के अंदर, 5% गिव के अंदर और 55% को मैनेज कर रहे हो अपनी सेविंग के लिए। This I learned and I applied. This I learned from the masters and I applied in my personal life. I applied this in the life of hundreds and hundreds and hundreds of my client. Like when आज उनसे बात करता हूँ ना उन क्लाइंट के साथ में, कहते जुगनून मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर कर दो और वहां आपका पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्ले अकाउंट का मतलब है कि अपने ऊपर भी स्पेंड करें ना, अपने ऊपर भी स्पेंड करें। वो नहीं करते, अपने ऊपर स्पेंड नहीं करते, हमारी आत्मा भूखी रहती है और फिर वैसी ही फीलिंग हमारे माइंड के अंदर आती है और हमारा थर्मोस्टेट वहीं पर ही सेट हो जाता है। लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के लिए आपने 10% दिया, आपने कोई लेटेस्ट एलईडी टीवी खरीदना है, ड्रीम हॉलीडे ट्रिप पे जाना है, कहाँ से जाएंगे? एलटीएसएस में से। एजुकेशन, जितना ज़्यादा हम एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, बुक्स ले रहे हो, कहीं आप बाहर जा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर एजुकेशन, 10% उसके लिए मार्क कर दिया। और गिव देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव तो गिविंग का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। आई एम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, वो ना हर वीकली बेसिस के ऊपर अपनी गिव की फिगर शेयर करते हैं, गिव की फिगर शेयर करते हैं। इंडिविजुअली कोई नहीं बताता, एक हमने ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तो जैसे उसके अंदर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो एल्गोरिथम के द्वारा आ जाता है, तो हमारा पूरे ग्रुप के अंदर तो पिछले महीने 97 लाख रुपीस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स गिव अकाउंट एंड दैट इज समथिंग। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही यूनिवर्स से। आपने वो पैसा गिव अकाउंट के अंदर दिया, अब किसी को नहीं पता होता किसने दिया, कहाँ दिया। अच्छा दो भी अपनी मर्जी से, जहां मर्जी अपने आप से खुद सेल्फ आप दे दो जहां आपने कंट्रीब्यूट करना है। ओके तो वहां करेंगे ना। अब जो दुआएं वहां से मिलती हैं, जहां भी ये पैसा चला गया है जिसको मिलता है, तो नीडी पर्सन के अंदर से ना दुआएं निकलती है और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो क्यों ना अपने जो हमने पैसा कैश रिजर्व में ट्रांसफर किया उसका 5%, उस अमाउंट का 5% हम गिव अकाउंट के अंदर करें और 55% से अपनी नेसेसिटी को हमने मैनेज करना है। दिस इज समथिंग माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम आ गए हैं इस पार्ट के ऊपर, फ्रेमवर्क के ऊपर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू यू हैव एनी क्वेश्चन? व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड?
इस फ्रेमवर्क को देखने के बाद व्हाट इज दैट विच इज कमिंग इन योर माइंड, हु वुड लाइक टू शेयर, who would like to share what is coming in your mind when you look at this framework as a whole? Can anybody explain? Can anybody tell why is it important? Yes, your participation is important. Like अभी तक की डिस्कशन जहां तक हम लेकर आए हैं, now there are 55 participants right now available, so I want some of the participant raise your hand. जब आप रेज हैंड करेंगे ना या चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको इमीडिएट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा आपके साथ में, so that you are able to share. जब मैं इस फ्रेमवर्क की बात करता हूँ एंड इफ समबडी वांट टू शेयर कि वो ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहा है तो वो अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, हु वुड लाइक टू शेयर? बाय द टाइम आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, यस, whosoever want to share, please type on the raise your hand. And in the meantime, how this percentage to be managed in jar, different bank account. अभिनव जी ऐसा है, डिफरेंट बैंक अकाउंट खुलेंगे आपके, यानी कि 6 सेविंग अकाउंट ओपन होंगे आपके, 6 सेविंग अकाउंट. आपको उसके लिए क्या करनी है, नेट वर्थ बनानी है. लेट मी शो यू. Yes, very relevant question, Abhinav ji. Are you able to see my screen, Abhinav ji, and everybody? ठीक है, it is opening up now. कैसे करना है, इस तरह से करना है. मैकेनिज्म कैसे काम करेगा कि मैंने क्या किया है, मैं अपना दिखाता हूँ. नेसेसिटी अकाउंट में 55% वो मेरा आईसीआईसी में बैंक अकाउंट है. फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में 10% मेरा एसबीआई में है, एसबीआई 2, एचडीएफसी 1, एचडीएफसी 2, आईसीआईसी बैंक. यानी कि मैंने 3 बैंकों के अंदर 2 सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए हैं. जो भी मेरा पैसा आता है, मान लीजिए मैंने कैश रिजर्व ट्रांसफर किया 2.5 लाख रुपए. जैसे ही 2.5 लाख ट्रांसफर किया, चलो मैं 5 लाख करता हूँ या 1 लाख करता हूँ, 1 2 3 4 5. तो जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, उस रेशो के हिसाब से इन सभी बैंकों के अंदर पहले मैं सारा का सारा पैसा अपने पहले वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ आईसीआईसी बैंक के अंदर. तो सारा पैसा उसके अंदर आ गया. अब इसमें से 10% और 5% जो है 1 मिनट लगता है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसके अंदर मैंने आईसीआईसी बैंक की ऐप अपडेट की हुई है. अब उस आईसीआईसी बैंक के अंदर पहले वो पैसे आ गए. अब यहाँ कैलकुलेटर से पता लगी या किस अकाउंट में कहाँ जाने हैं, खड़क वहां से ट्रांसफर कर दिए बाकी सभी अकाउंटों के अंदर. तो हमें वहां से पैसे नजर भी आने शुरू हुए. जब पैसे वहां पर दिखने शुरू हो गए, अब जो यूटिलाइज करने हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले सेविंग अकाउंट से फाइनेंशियल फ्रीडम की इन्वेस्टमेंट करूंगा. अच्छा, आप कह रहे हो 55% सीम टू बी लॉट ऑफ नेसेसिटी. इफ फॉर मी इट इज 25%, हाउ शुड आई डिस्ट्रीब्यूट द 30% अदर? देखो ये लो, तो आपने क्या करना है, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है सुशांत जी कि अगर आपके पास सरप्लस बचता है, देखो ये ना मैं कई सालों से प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूं सुशांत जी, तो ये सिचुएशन मेरे सामने आई, तभी मैंने स्टार बना के लिख दिया. जैसे मेरे केस के अंदर तो 6-7% ही नेसेसिटी में स्पेंड होता है. अब क्या नोट थोड़ी खाएंगे हम. तो दैट मीन टू से कि मैं क्या करता हूँ, सरप्लस पैसे को ट्रांसफर कर देता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर. फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट इज द रियल अकाउंट विच मेक यू फ्री. जो आपको सेट फ्री कर देता है और आप उस पैसे का अब कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे एफडीज के अंदर करो. तो अगर कोई विंडफॉल गेन भी हो जाए ना, विंडफॉल गेन, सडनली कोई बड़ी इनकम आपको मिल गई, तो उसको क्या करना है, उठा के फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल देना है. फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में क्या था, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम, व्हीकल, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग इन अदर इन्वेस्टमेंट. सो दीज आर द एरिया वेयर यू रियली नीड टू इन्वेस्ट. नाउ जैसे मैंने 5 बजे से आज शुरू किया और आप ये अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि यार इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो तो आ रहा था, कैश फ्लो आ रहा है, और आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ के अंदर कैश फ्लो आता रहेगा. तो कंसिस्टेंट फ्लो उसका कैसे मेंटेन करना है पर्सनल लाइफ में और बिजनेस के अंदर. तो बिजनेस के अंदर इस बार मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, आप उस फ्रेमवर्क को एज इट इज फॉलो करो. अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, आप ना मेरे साथ 1-to-1 कर सकते हैं.
if somebody is interested to do one-to-one with me, then please type one-to-one, like चलो ऐसे लिख दो, 1-to-1 लिख दो, ONE1 की जगह 1-to-1 लिख दो. If you are interested to do 1-to-1 with me, then please type 1-to-1 in the chat box. तो हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराऊंगा, उसके अंदर लाइक माय ईए उपासना इज देयर, वो अभी अपना नंबर भी शेयर कर रही है. उपासना आप अपना नंबर भी शेयर कर दो और इस चैट को भी सेव कर लो. Those who want to do 1-to-1, like you are enlightened soul who really took a decision after reading my message that I will go and attend 5 AM workshop. तो आपने वो डिसीजन लिया, आप यहाँ पर आए. ओके अच्छा, 1-to-1 जूम पर होगा, 1-to-1 जूम पर होगा, 1-to-1 जूम कॉल पे करेंगे हम, और नीड बेसिस पे मिल भी सकते हैं, कोई बात नहीं. मेरा ऑफिस जनकपुरी में ही है और जूम पे तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में मेरी मीटिंग होती है. एवरी डे आई डू 8 मीटिंग्स, एवरी डे 8 मीटिंग्स आई एम डूइंग. ओके, तो 1-to-1 के अंदर ना, जैसे उपासना ने अपना नंबर दिया, मेरी ये है, तो जो भी आपने 1-to-1 करना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख दिया. शी विल ऑर्गेनाइज दैट एंड वी विल वर्क ऑन योर बिजनेस मॉडल, वी विल वर्क ऑन योर. अच्छा, मैंने पहले क्या बोला सबसे शुरू में कि यू आर गोइंग टू अटेंड 1 डे. जैसे आपको कुछ मिनट अभी मैंने शेयर किया, 5 बजे शुरू किया, कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूं. द कंटेंट आई एम शेयरिंग विद यू आर समथिंग. ओके, टेल मी जेन्युइनली, आर यू गेटिंग वैल्यू of the time you have invested so far from 6 to 6:16 right now? If you are getting a value, then please type value in the chat box if it is really a value you are getting. Okay, thank you. तो देखा हमने कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में हम कैश फ्लो को देख रहे हैं. मतलब 20 सालों से ना, जब मैं इन चीजों को इतनी गहराई से डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं, ये ना कैश फ्लो मास्टरी करने से होती है. और ये किसका काम है? एक्शन का काम है. आप एक्शन ओरिएंटेड हो. आप कह रहे होंगे कि वाई जगमोहन 5 AM, वाई 5 AM? See, 5 AM is the qualification criteria when you really challenge your body, when you really challenge your being, and you come into that picture. So that clearly tell me that you will be taking action. So I provide coaching to those people who are really amazing, like loyal, like courageous, who are ready to take action. जिसने भी एक्शन लिया है ना, जिसने भी एक्शन लिया है, उसकी लाइफ के अंदर रिजल्ट आया ही आया है. उसकी लाइफ में ना रिजल्ट आया है. तो जो लोग 1-to-1 करना चाहते हैं इसके अंदर लिखें. तो अब आप ना ये भी जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो लोग पहली बार आज की डेट में आए हैं उनको मैं बताता हूँ. हमारे पास ना एक JSA ऑनलाइन का पोर्टल है जिसके अंदर एबंडेंस ऑफ नॉलेज है. बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस JSA ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर चुके हैं और कुछ लोगों को पता है उसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता है. ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर आपने JSA ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है तो जस्ट टाइप JSA in the chat box. So Sang ji, thank you. Like आप उसको यूज कर रहे हो और आपको ट्रू वैल्यू मिल रही है, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर टेकिंग दैट रियल एस्पेक्ट. अगर आप ऑलरेडी JSA को यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्लीज टाइप JSA इन द चैट बॉक्स. राइट, तो आपने देखो JSA टाइप किया. अब JSA टाइप करने का मतलब है कि वो लोग जो कर रहे हैं. अच्छा, जिन्होंने JSA के बारे में नहीं पता जिनको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो नो टाइप करें. आप सुबह की वर्कशॉप के अंदर आए हैं और आपको JSA के बारे में नहीं पता, तो आप नो टाइप करें. तो मैं अभी आपको JSA ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ. यस, JSA ऑनलाइन के बारे में तो क्विकली बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, और आप उसको जरा समझ लेना, मतलब समझ आ जाएगा. क्योंकि आपके माइंड में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जगमोहन व्हाई, लाइक तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो. तो लेट मी टेल यू ये क्या हो रहा है, कि मैं किस मिशन के ऊपर हूँ, क्या मिशन है जो मुझे इतना इंकरेज करता है और सारा चीज छोड़ने के लिए. देखो, पहली बात तो ये है कि जो कैश फ्लो है ना, वो मेरा पैशन है. कैश फ्लो मास्टरी मेरा पैशन है. और कैश फ्लो मास्टरी मैंने कब से शुरू की? आज से 20 साल पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जब क्वालिफाई किया, और इतनी इन डेप्थ के अंदर डाटा एनालिसिस करना, लॉ को देखना, लीगल टेक्निकल सारे एस्पेक्ट देखे, दैट क्रिएटेड माय इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट को जब 4 चांद लग गए जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी की, और टोनी रॉबिन्सन की मनी मास्टर द गेम 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम पढ़ा मैंने, और सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर किया. तो मेरा इंटरेस्ट फुल एक्टिवेटेड हो गया. और फिर मैंने इनसे पर्सनली मिला, पर्सनल कोचिंग ली इनके साथ में, बुक को पढ़ा, फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपनी क्लाइंट की लाइफ में इंप्लीमेंट किया, एंड पीपल आर रियली मेकिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एंड लिविंग अ डिजायर्ड लाइफ. लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंस था क्या मेरी लाइफ के अंदर? एक ना मेरा क्लाइंट था,
पहले थोड़ी ऐसा मैं वर्कशॉप कर रहा था, मेरा एक क्लाइंट था वो बस सुसाइड ही करने वाला था इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। उसने मुझसे शेयर किया, वो इंसिडेंट ने ना मुझे झकझोर कर रख दिया। तो पूरा उसके साथ मिलकर मैंने काम किया और आज की डेट में वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। तो मेरा वो मिशन उसके साथ में कंप्लीट हुआ कि उसका बिजनेस सुसाइड से हमने पहुंचाया कैश रिच बिजनेस के ऊपर। और इस मिशन के बाद ना मैंने तो अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया है। नाउ आई एम ऑन अ मिशन, आई एम ऑन अ मिशन टू एजुकेट एंड एनलाइटन 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life। तो अच्छा, मैंने 20 सालों में 879 बिजनेस ओनर के यहाँ तो पर्सनली खुद मतलब बना बना के काम किया है, और इसके अलावा 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर की लाइफ इंपैक्ट हो चुकी है थ्रू माय ऑफिस, थ्रू माय टीम, थ्रू माय वेबिनार एंड प्रोग्राम। तो जब मैंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया तो मैंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की एक बुक लिखी है। एंड जिन लोगों ने इन बुक को पढ़ा है दे आर सेइंग कि यार मजा आ गया। तो मतलब इतनी सिंपल तरीके से फाइनेंस के बारे में किसी ने बताया नहीं था, एंड पीपल आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड एंड पीपल आर एक्सपीरियंसिंग कैश रिच लाइफ माय डियर फ्रेंड। और पहले जो मेरा फोकस था बस ये था कि किसी तरीके से कंप्लायंसेस पूरी कर दो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से एक टिपिकल चार्टेड अकाउंटेंट की तरह मैंने स्टार्ट किया। सुबह जाना, कोई वर्कशॉप करनी, प्रेजेंटेशन देनी और अपने टेक्निकल 4-5 बताए और समझता था कि मेरा काम हो गया। बट नाउ एब्सोल्युटली जब से मैं इस मिशन के ऊपर आया हूं तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इंपैक्ट करने का मैं टेकअप वर्क किया हुआ है। तो जो टेकअप किया हुआ है, मैं अब दीक्षित जी बताता हूँ कैसे काम करता है। टेकअप किया है तो मैं बिजनेस ओनर के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ, उनकी लाइफ में खुशियां लाता हूँ, तो अपनी लाइफ को ना खुशियां वैसी मिल जाती हैं। अच्छा, जब आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आया था ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो लेट अस सी 5 AM देखते हैं ये क्या मैसेज आ गया। somebody says if you are a millionaire, if you are a billionaire Jagmohan, then what is the need, what is the need, why you are sending WhatsApp messages to us to join 5 AM workshop? So आपके ऊपर भी कैश फ्लो मास्टरी काम करती है कि नहीं करती? आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, ये कैश फ्लो मास्टरी ना सभी के ऊपर इक्वली काम करती है। सो व्हाट हैपन, जब मैं कैश फ्लो मास्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था उस समय डिजायर गाड़ी में घुमा करता था और सपने लिया करता था मर्सिडीज के। मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो मास्टरी ना ये सारे सपने आपके पूरे कर देती हैं। इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैश फ्लो मास्टरी करने के बाद फ्रीडम आपके वर्क में भी अवेलेबल है, फ्रीडम आपकी हेल्थ में अवेलेबल है। कैश फ्लो मास्टरी से आप अपना मन चाहा स्पोर्ट्स खेलो, लगाओ ना टाइम वहां पे, आप ट्रैवल करो यार, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करो। ये कैश फ्लो मास्टरी पॉसिबल कराती है। और फैमिली को पूरा टाइम दो, उनको भी घूमो घुमाओ, वो जो चाहते हैं स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट करो। क्या बिजनेस के अंदर बिना कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल के हम जो चला रहे हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कब करेंगे? तो हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कब करेंगे? ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद देयर कैश फ्लो मास्टरी माय डियर फ्रेंड। अब उसके लिए जब मैंने इसको मिशन बना लिया अपना, तो जब मैं देख रहा हूँ बिजनेस ओनर को, जैसे आप सुबह आए तो क्या देखा, मैंने देखा कि यार मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बिजनेस ओनर को तो अपना मंथली प्रॉफिट ही नहीं पता, वो कैश फ्लो मिस मैनेजमेंट के साथ डील कर रहे हैं। कईयों की तो सुसाइड तक की नौबत आ गई थी, जिसके ऊपर हमने काम किया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है कंपनी के अंदर, कॉन्स्टेंट प्रेशर फील हो रहा है फाइनेंस, जो कि इंपैक्ट कर रहा है उनकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को भी। लास्ट मिनट कंप्लायंसेस के साथ में डील कर रहे हैं और चेक्स एंड कंट्रोल नहीं है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। आग लगी हुई है पूरी की पूरी काम करने की, लेकिन जब फाइनेंस कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात आती है तो दिमाग चकरा जाता है सब चीजों को देखते हुए। ऐसे कैश फ्लो ट्रैप के अंदर हम फंस गए हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। तो मैंने क्या बताया, सिंपल है यार, 15 सेकंड के अंदर अपना कैश फ्लो का डैशबोर्ड देखो ना, उसके पीछे की शीटें तो बनाओ, अपनी आपकी टीम बनाएगी, आपको प्रोवाइड करेगी। देखो उसके अंदर अब जो मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं उसका नाम है JSA ऑनलाइन। जैसे आचरेकर, सचिन तेंदुलकर, देखो ब्रिलियंट तो आप हो, सचिन तेंदुलकर तो आप ही हो, सचिन तेंदुलकर तो आप ही हो। मुझे तो बस एक बार आपको बैट दिखाना है, बैट सीधा करवाना है। अच्छा, डू यू थिंक, अगर आपको लगता है कि यू नीड माई हैंड होल्डिंग सपोर्ट, अगर आपको लगता है, अच्छा आपने लेनी है नहीं लेनी है वो आप बाद में डिसाइड करना। आपको लगता है कि आपको फाइनेंस के अंदर 1-to-1 हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर यस तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अगर नो तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स।
तो जिन लोगों को लगता है कि मेरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके साथ में रहेगी, जो मैंने अपनी लेगेसी क्रिएट की है, एक्सपीरियंस की, वो मैं आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। जब आप कैश फ्लो मास्टरी के अंदर आएंगे तो भी मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा, 1-to-1 भी फ्री प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर मेरे से हैंड होल्डिंग आपको चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक शानदार प्रोजेक्ट बनाया, होल्ड योर ब्रेथ, और ये रहा, इसका नाम है JSA ऑनलाइन। देखो JSA ऑनलाइन मैंने आपके सामने ओपन किया, दिस वन। JSA ऑनलाइन इज हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं, आपके माइंड में ना कोई भी क्वेश्चन आए, इसका प्रोसेस क्या था कि आप जैसे ही गूगल ड्राइव पे जाएं, आप नॉर्मल जाएंगे, नॉर्मल एक नया पेज खोलते हैं, नया पेज खेलते हैं, तो नया पेज खोला और यहाँ पर आपने JSAonline.in टाइप किया तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेलकम टू JSA ऑनलाइन। अब अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसके थ्रू ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपने यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से क्लिक किया और लॉगिन कर लिया। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो ये JSA ऑनलाइन का खजाना, चीनी का चिराग खुलकर आपके सामने आ गया। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया कि जगमोहन 1-to-1 करनी है, आस्क योर क्वेश्चन पे गए और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसको टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया, आस्क योर क्वेश्चन किया, सबमिट कर दिया। जो भी लिखना है, मेरे से 1-to-1 करनी है, ये कैश फ्लो कैसे काम करता है। जैसे अभी जो 22 ईयर के यंगस्टर ने पूछा कि मुझे बिजनेस में और क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिजनेस कौन सा शुरू कर सकता हूँ, किसी की GST की, इनकम टैक्स की, TDS की, कंप्लायंस की, ऑडिट की, टैक्स ऑडिट की, कोई भी क्वेरी है बस आप यहाँ पर लिखो और सबमिट कर दो। वो क्वेरी जो है वो मेरी टेक्निकल टीम के पास पहुंच जाएगी, वो मेरे पास पहुंच जाएगी। I have 100+ team member waiting for your question. I will reply that. In the meantime, what you can do, what your team can do, I have uploaded more than 3,000. I have compiled more than 3,000. My video, compiled video, everything I have put on this website. जिसके अंदर आपको पता लगता है कि ये फाइनेंशियल समरी कैसे बनती है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, कैश फ्लो मॉडल कैसे चलता है, वर्किंग कैपिटल कैसे करनी है, MIS कैसे बनाए, नेटवर्थ कैसे बनाए, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे लगाए, मंथली मीटिंग कैसे करें, वैल्यूएबल ऑडिट कैसे होगा, इन्वेंट्री ऑडिट कैसे होगा, कलेक्शन कैसे चलेगी, फाइनेंशियल समरी कैसे बनेगी, और बैंकों से ऑटोमेटिक ट्रांसफर क्या होगा। दुनिया जहान की सारी नॉलेज मैंने आपको डाल दी। अच्छा, फिर आपको वीडियो देखते हुए या वैसे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो आपने आस्क योर क्वेश्चन पे टाइप कर दिया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्लीट कैश फ्लो के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इसी के अंदर ही मैंने कुछ वर्कशॉप भी डाल दी हैं ताकि आप उसको पूरा सीख सकें। PPT भी है और उसकी वर्कशॉप भी है 6 घंटे की, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर बहुत सारे वेबिनार्स भी डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप अपना प्रोडिक्ट फ्यूचर कैसे कर सकते हो बजट के ऊपर, फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब कैसे काम करता है, कैश फ्लो आपके बिजनेस को रन या रियून कर सकता है। मैंने GST से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को होनी चाहिए वो डाल दी। ऑटोमेशन कैसे होगी TDS की, और TDS रिटर्न कैसे फाइल होगी, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, वो सारे के सारे एस्पेक्ट। इसके अलावा मैंने इस इंडेक्स के अंदर 300 से ज्यादा टॉपिक कवर किए हैं। एक एक टॉपिक अपने आप में महारथी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद मॉड्यूल आ गया, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, हर एक टॉपिक की मैंने वीडियो बना दी, राइटअप बना दिया और फॉर्मेट बना दिया। वीडियो पे क्लिक करोगे वीडियो खुल जाएगी। बजट कैसे बनाएं, लेजर स्क्रूटनी कैसे करें, परचेज की FMS कैसे बनाएं, IMS कैसे बनेगी, EM कैसे करेंगे, डैशबोर्ड कैसे होगा, GST कैसे होगा, LUT कैसे होगा। मैंने सारी की सारी अपनी लाइफ की जो लेगेसी है इसके अंदर डाल दी है और आपको मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। हैंड होल्डिंग, तो ये है JSA ऑनलाइन, तो ये है हमारा JSA ऑनलाइन। तो अब पता क्या है, इस JSA ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सिंपल इस सर्विस को जब देखते हो तो ये आपको हेल्प करता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच रन करने के लिए। और आपको क्या मिल रहा है, आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो रही है आपके बिजनेस के अंदर। मैं आई एम द ओनली फाइनेंस कोच जो इस इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है प्रैक्टिकली आपके बिजनेस के अंदर। कोई ज्ञान नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधा आपके बिजनेस के अंदर उसको हम इंप्लीमेंट
करते हैं। जार टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, करवा देंगे। नेटवर्क करना है, करा देंगे। हर हफ्ते एक वीडियो भेजेंगे ताकि आप उसको देखकर इंस्पायर रहें। आपके लिए तो मैंने 24/7 की एक्सेस दे दी JSA ऑनलाइन की। आप सीखो, वाइफ को सिखाओ, हस्बैंड को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, अपनी पूरी टीम को ट्रेन करो ना इसके अंदर। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो ना, कभी भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो तो सही इसके अंदर आकर। आपके पास हर महीने, हर सैटरडे, पहले सैटरडे को 4 से 6 2 घंटे के लिए लाइव सेशन भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये मेरे 100+ टीम मेंबर बैठे हैं ऑफिस के अंदर। लाइक मुझे ये बताओ कि क्या ये आपको हेल्प करेगा प्रॉफिटेबल और कैश बिजनेस रन करने के लिए? अगर आपको लगता है ये करेगा तो, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो देखो, कंसीडर करो कि अगर ये आपको हेल्प करता है कि नहीं करता। जस्ट सी, मतलब मैंने तो डाल दिया सारा का सारा इसके अंदर। इसकी ना आम तौर पे प्राइसिंग होती है 7 से लेके 9 लाख साल के, लेकिन मैंने इसका प्राइस रखा 60,000 रुपये, जो आपको नहीं देने। मैंने इसका प्राइस रखा है 29,000, वो भी आपको नहीं देना। मैं ना चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके देखो जरा, लिंक पे क्लिक करके देखो, वहां पे आपको सरप्राइज मिलने वाला है। ये रहा लिंक। तो मैं कहता हूँ एक बार लिंक पे क्लिक करके तो देखो, आपको सरप्राइज मिलने वाला है। जस्ट हैव अ क्लिक ऑन द लिंक, दोज हु आर ऑपरेटिंग हियर। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप देखो, आप वहां पर देखोगे कि आपको मिलने वाला है JSA ऑनलाइन, जिसका प्राइस वैसे 60,000 था, बोनस में आपको अलग से दे रहा हूँ। स्पेशल प्राइस मैंने रखा है इसका 29,000 रुपये, और आपको लेकिन वो भी नहीं देने हैं। अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ देने हैं 15,000 प्लस GST। अगर आपने ऑलरेडी बॉट कर लिया है तो श्रीनिवासन जी बहुत अच्छी बात है, आप 5 AM की क्लासेस के अंदर आते रहें, आप मंथली आए, मेरे से 1 to 1 करें, पूरी सर्विस लें एंड कीप ऑन, मतलब फुल एक्सप्लोर कर दो श्रीनिवासन जी। और जिस किसी को भी ये सर्विस चाहिए वो कर लो। अगर आपको लगता है कि यार जगमोहन बात तो ठीक है, तो ये तो सही है, काम करेगा, काम करेगा, तो आप मेरे से 1 to 1 करो, तो आप मेरे से 1 to 1 करो। ओके, तो 1 to 1 करो, आगे बढ़ो। और अब टाइम हो गया है 6:30, ये मैंने कमिट किया था, 90 मिनट का आपसे मैं टाइम लूंगा। Those who want to register now, please register. Those who want to ask any question from me, ask a question from me in the chat box. मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ। दिस इज माई ओन मोबाइल नंबर 9811269798, 9811269798। दिस इज माई नंबर। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही बात करना बाकी उपासना का। और जो टिकट मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, आज उपासना जो है सभी को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी। एवरीबडी विल गेट द टिकट। एवरीबडी जो अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फ्री टिकट मिल रही है कैश फ्लो मास्टरी की। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। तो अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर के सेमिनार के लिए। अच्छा, तो अब मुझे लास्ट में जाते जाते बताओ, was it a value? Do you really get value from today's program? If you really got the value, then please type value in the chat box. If genuinely बताना, genuinely अगर आपको वैल्यू मिली है ना, तो आप वैल्यू लिख दो। और ना ये हम हर हफ्ते करते रहेंगे, हर हफ्ते, हर सैटरडे। मतलब आपने ना इस मिशन के अंदर पूरा साथ देना है मेरा, कि जिस चीज को भी देखो, हम कोई पैसे लगाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। तो एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट मैंने उनके लिए रखा है जो कि JSA ऑनलाइन में आना चाहते हैं, वो भी 1 साल का, 1 ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अटेंड करो ना, 5 AM वर्कशॉप भी अटेंड करो, ये पार्टिसिपेंट होते हैं, और लोगों को भी रेफर करो जिनको लगता है कि वैल्यू मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये जो कैंडल है ना, कैंडल, ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से एक लाइट जली, दूसरी जली, तीसरी जली, तो हमने कैंडल से कैंडल जलाते चले जाना है। सो वी नीड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन so that everybody get benefited. The time is completed, and at this point of time, I'm truly thankful to everyone from the depth of my heart. Thank you for participating today. माई कमिटमेंट इज अगले सैटरडे को एक और टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सुजेस्ट करना चाहते हैं जो आपके दिल के करीब है और उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करो। आप मेरे नंबर पे ना व्हाट्सएप करो, और आपको जो टॉपिक चाहिए मैं उसको प्रिपेयर करूंगा। अब सैटरडे मॉर्निंग 5 AM to 6:30 AM की जर्नी में यू आर पार्ट ऑफ इट। एंड वंस अगेन, thank you, bye and have a great time. Thank you everyone. Bye. Thank you Navish ji. Thank you Rajkumar ji. Thank you Vendan ji. Thank you everyone.
Thank you everyone for your amazing and valuable time. Yes. You're awesome. So bye. I'm going to complete this talk. Thank you.